हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज आपका इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का बहुत अच्छा रहा होगा। आपने साल भर मेहनत करी है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर। आपको समय मिला 3 घंटा 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स। पहले पेज पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद आ जाइए सेक्शन ए पर। फर्स्ट पैराग्राफ, जैसा कि आपको क्लास में बताया गया कि फर्स्ट यू हैव टू रीड the questions then after paragraph. Now the questions are, आपने जरूर निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ा होगा पहले। Now अब आपको क्लियर आंसर नज़र आ रहा है। The first is 3 goals for India are. What are the 3 goals? 3 goals for India are freedom, independence and economic development and all. This is the answer, all. So your first answer is all. This is your answer. This second is, who has 3 goals to be achieved for India? So your answer is Dr. APJ Abdul Kalam. What will help Indians to get respect for other countries? That is B, economic development. It is written here. Economic development will help us to be strong and will make other countries respect us. So this is your answer. Now next is fourth, who is responsible for the development of India? So your answer is fourth, Indians. B is correct. Now next is, choose the similar word of the following from the passage. The power of insight, that is vision. Vision is your answer, दूर देखने की दृष्टि. Now next, choose the opposite word of the following from the passage. अपोजिट वर्ड आपको इसमें फाइंड करना है हाइंडर का। तो हाइंडर का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। तो योर करेक्ट आंसर इज बाधा उत्पन्न करने का कंट्रीब्यूट, संयोग करना। तो 6th का आंसर रहा आपका कंट्रीब्यूट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. क्वेश्चन नंबर 2. Now we will start. आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, आफ्टर दैट आपने प्रश्न पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़े, पैराग्राफ पढ़ा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. तो योर आंसर इज, राइटर इज वॉकिंग along the street of Delhi. This is your answer first. Second is, in which field had the man on the earth got achievement? So your answer is, the man had greatness on every plane: astronomy, algebra, architecture, even poetry, music and art. This is your answer. up to full stop. art के बाद जब full stop है ना, वहां तक आपको लिखना है. Now third question is, where did the writer mean Suvan Lal? तो your answer is Connaught Circus. Connaught Circus पे मिले थे वो. This is your answer. Connaught Circus. Now next is, who said hello to the writer? तो your answer is Suvan Lal. Your answer is Suvan Lal. Now next is, whose friend are described in the passage? तो your answer is whose friend? Fifth question is Suvan Lal's friend. Your question is Suvan Lal's friend. This is your answer.
किसका मित्र था? सूरलाल फ्रेंड का. नाउ नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन. हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट? हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट? तो योर आंसर इज 6th का younger man. The younger man started speaking very fast. Now next, who translated for the writer? So your answer is Suvan Lal. Suvan Lal had been translated for me. This last line is the answer. Now next question is writing the similar word for the following passage. Wishing. तो wishing का जो आपका आंसर है that is greeting. This is your answer. Now next is write the opposite word of the following passage from the stopped. तो stopped का आपका आंसर होता है started. started आप इसको निकाल लेंगे, आंसर इसका started लिखेंगे. ये कहाँ मिलेगा आपको? stopped का started. पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और आंसर ढूंढेंगे. STARTED started. तो started is written here. This is started. This it is written here. Started. Now come to the section B. Imagine you are Sushma or Param living in Amritsar. Your sister has secured 95% marks in board examination. Write congratulations to her on this occasion. तो आपको अपने मित्र को, आप अपने आप को सुषमा माने या आप अपने आप को परम माने, आपके योर सिस्टर हैज सिक्योर 95% आपकी बहन ने 95% सिक्योर किया है. तो आपको अपनी बहन को बधाई पत्र लिखना है, उसको शाबाशी देनी है इस अवसर पे क्योंकि उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं. तो या तो आपको ये करना है या दूसरा है यू आर सिद्धि और सिद्धार्थ. या तो आप सिद्धि हैं या आप सिद्धार्थ हैं. स्टडिंग इन 10th क्लास इन GSS कोटा. मान लीजिए आप कोटा के स्कूल में पढ़ती हैं, 10th क्लास में, आपका नाम सिद्धि और सिद्धार्थ है. यू कांट अफोर्ड द फीस एज योर फादर इज सिक. चूँकि आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल को बोर्ड एग्ज़ाम की फ़ीस जमा कराने के लिए कि आप वो फीस आपके बिहाफ पर आपके स्कूल वाले दे दें, आपके प्रिंसिपल सर आपकी सहायता कर दें, इसलिए आप अपने एक पत्र लिखते हैं ऐसा करने के लिए. मान लीजिए आप बहुत इंटेलिजेंट है, डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 year ऑफ योर एजुकेशन. पैसे के अभाव में आप 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को लिखकर आपके बिहाफ पर वो स्कूल वाले कहीं से भी फीस अरेंज कर दें और आपका साल बच जाए. बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको एक पत्र लिखना है. तो आपने दोनों में से किया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ये आपने किया है, या तो ये करना है या ये करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है कहानी. राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 words. गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट. आपको एक कहानी लिखनी है. कहानी इस तरीके से चल रही है आपकी. अ फार्मर हैड, कुछ पॉइंट दिए हैं. हिज सन्स, एक किसान है, उसके 4 बेटे हैं. लेजी एंड क्वेल्सम, आलसी हैं, झगड़ालू हैं. ही गिव स्टिक्स, वो अपने 4 बेटों को एक छड़ी देता है. दे ट्रिक ऑफ द फार्मर, ही टोल्ड यूनाइटी एंड द सन्स टॉट अ लेसन बाय अ फार्मर. तो ये कहानी वही है एकता में बल वाली, जो आपको बचपन से पढ़ाई गई है. आपने क्लास 1 to 10 तक इसको पढ़ा है. तो कहानी का आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे 4 नंबर की कहानी में कि 1 नंबर तो आपको हेडिंग डालने में और 1 नंबर आपको मॉरल में.
और बाकी 2 नंबर आपको बॉडी पार्ट में। अगर आपने कहानी लिखी है तो आपने निश्चित रूप से मार्क्स गेन किए हैं। हेडिंग में आपको, हेडिंग में 3 या 4 शब्द जितने भी आते हैं, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी कंपल्सरी। और मॉरल उसका होना चाहिए, तब तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे 4 मार्क्स। इसके अलावा जो दूसरी स्टोरी वो है रैबिट एंड टॉर्टॉइस, कछुआ और खरगोश वाली कहानी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपका इसका हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग में वही कैपिटल लेटर्स होने चाहिए और एक मोरल होना चाहिए। तो आपने हेडिंग डाला होगा, हेडिंग टाइटल रैबिट एंड टॉर्टॉइस, कछुआ और खरगोश की कहानी, दिस इज द स्टोरी। मोरल, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चल के कोई भी रेस प्राप्त की जाती है, यानी धीरे धीरे चलकर और लगातार चल के कितनी भी लंबी रेस प्राप्त की जा सकती है, दौड़ जीती जा सकती है अगर धीरे धीरे और लगातार चलते रहें तो स्लो एंड स्टडी विंस अगर आपने ऐसा लिखा है तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिल जाएंगे 4 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक आपको पिक्चर दे रखी है जिसमें एक टैप में से बूंद गिर रही है और एक हाथ लगा हुआ है नीचे। तो इसको देख के साफ एक हेडिंग दिमाग में आ रहा है, किस बारे में, सेव द वाटर कंजर्वेशन। तो इस पे आपने पैराग्राफ लिखा होगा, या आपको दूसरा भी था इसमें, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन, तो आपने इस पर लिखा होगा। नाउ कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में पढ़ेंगे हम। बहुत इजी है, बहुत सरल पेपर आया है। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट। दिस इज क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट लिखा है द ट्रेन ब्लैंक रिच द स्टेशन बिफोर आई रिच देयर। तो ये आपने क्या पढ़ा है, मैंने आपको पास्ट टेंस में एक गोल्डन रूल पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में वही गोल्डन रूल यहाँ पर आ गया है। जो पहले अगर बिफोर आ रहा है तो वहां पर आएगा हैड रिस्ट, आएगा वहां पे हैड रिस्ट, यहाँ पर आएगा हैड रिस्ट आएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज माई मदर ऑलवेज वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आएगा वर्शिप्स, WORSHIPS, वर्शिप्स, इसमें S लग जाएगा यहाँ पर इस जगह, वर्शिप्स। नाउ नेक्स्ट इज ही ब्लैंक अराइव एट हिज डेस्टिनी बाय नाउ, यहाँ आएगा मस्ट हैव अराइव्ड at the destination by now. Now fourth is I learnt English since last year. यहाँ आएगा I had been learning English since last year. Now next is seventh. Rewrite the following sentence changing into the indirect speech. तो your answer will be, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो इसमें आएगा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स की जगह हो जाएगा टोल्ड, सेड टू की जगह टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे आर गुड स्टूडेंट्स। रिपीट करेंगे, ये जो यू है ना सेकंड पर्सन, ये बदलेगा स्टूडेंट्स के अनुसार। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that they are good students. Now second is he said to me, did you read newspaper before going to school? Your correct answer will be in indirect is said to की जगह asked हो जाएगा। He asked me if I had read newspaper before going to school. I'm repeating,
He asked me if I had read newspaper before going to school. This is your answer. Now come to eighth question. Fill in the blanks with the verb given in the agreement with their subject. Harry with his friend blank for a walk daily goes. तो Harry with his friends, Harry is singular, तो answer is goes. Your answer is goes is correct. Now next is among all the students he dash different in his opinion. So your correct answer is was. Was is correct answer. First is was. Was is correct answer. Now next question number 9th. Change the following sentence into passive voice. तो your first is do it. Do it को passive में convert करना है. तो your correct answer is let it be done. Is let it be done. Let it be done. Now second, 9th का second. My mother gave me a beautiful gift. The passive voice is a beautiful gift was given me by my mother. A beautiful gift was given me by my mother. This is your answer. Now come to the 10th. Frame questions of the following sentence. God examines all. So your question is all. So your question is who examines all? Your answer is who examines all. Who examines all. So now next is add tag question to the statement given below. Students don't waste their time. So your question is will they and question mark. Will they question mark. Now come to the section D. सेक्शन डी ये आपका सीन पैसेज है. जो पहले के जो 2 पैसेज है वो है अनसीन और दिस इज योर सीन पैसेज. आपने पार्ट पढ़ा है पूरे साल कोर्स में आपके रहा है वल्ली वाला पार्ट. तो आप देखिए ये पैराग्राफ वही आया है. तो योर आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. पहले क्वेश्चन फिर आंसर देन अगेन क्वेश्चन देन वी विल फाइंड आंसर्स ऑटोमेटिकली. सेक्शन डी का स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट. आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज. आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज. तो योर आंसर इज टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस. कि वो घर से कैसे निकले. क्या आंसर है आपका? टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस. दिस इज योर आंसर. कि उसके पास पैसा इकट्ठा करने के बाद यही दिक्कत थी कि घर से कैसे निकला जाए. वल्ली स्टूड लुकिंग फ्रॉम. वल्ली कहाँ खड़ी होकर देखा करती थी. कहाँ खड़ी होकर पूरे दिन वो अपना ऑब्जर्वेशन करती थी. तो योर आंसर इज डोरवे. वह हमेशा कहाँ खड़ी हुआ करती थी. डोरवे पे खड़ी होकर स्टडी किया करती थी बाहर से आने जाने वालों को. दिस इज डोरवे. थर्ड इज वल्ली यूज द आवर्स ऑफ मदर्स नैप इज. माँ जब सो जाती थी तो वो क्या कार्य करती थी माँ के सोने के बाद. दिस इज एक्सकर्शन. एक्सकर्शन इज योर आंसर. एक्सकर्शन उसकी साहसिक यात्रा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द बस रोल ऑन.
बस कहाँ लुढ़की, कहाँ चलती थी बस? तो योर आंसर इज कहाँ लुढ़कती थी बस? द बस रोल्ड ऑन अ कटिंग अक्रॉस अ bare landscape. Now rushing through a tiny hamlet past an old warships now. यहाँ पे बस चला करती थी. This is your answer. Full stop तक. What was gobbled up by the bus? बस क्या निगलती नजर आती थी? व्हीकल्स नजर आती थी. जो उसके पास से साधन आते थे ना, उनको ऐसा लगता था जैसे वो उनको निगल रही है. तो दिस इज योर आंसर. तो ये आंसर हो गया. गोबल्ड अप ये हो गया. नाउ सिक्स्थ इज हाउ मच डिड वल्ली सेव फाइनली फॉर द बस? वल्ली ने बस के लिए टोटल कितना रुपया सेव कर लिया था? तो योर आंसर इज शी हैड सेव्ड टोटल 60 पैसा. उसने 60 पैसा डिपॉजिट कर लिया था. दिस इज योर करेक्ट आंसर. Now this is your second paragraph. There was no answer. The radio was dead too. I had no radio. तो ये पैराग्राफ है आपका फर्स्ट फ्लाइट एरोप्लेन से. The first question is the pilot could not see where he was because of he had no. क्या नहीं था उसके पास? क्या नहीं देख पाया था? द पायलट कुड नॉट सी, क्या नहीं देख सका? वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो. क्यों? रेडियो नहीं था उसके पास, बादल नहीं था, क्लाउड नहीं था, कंपास नहीं था, या वो तो ओरिस, या रेडियो नहीं था, क्लाउड नहीं था, क्या नहीं था उसके पास? तो योर करेक्ट आंसर इज कंपास. कंपास नहीं था उसके पास. उसके पास नहीं था, कंपास नहीं था उसके पास. Your correct answer is compass. This is your correct answer. Now next is where did the pilot lose himself? कहाँ खो गया था वो? स्टॉर्म में, इन फेयर में, मेले में, गली में, घर में, वो तूफान में खो गया था. दिस इज योर करेक्ट आंसर. स्टॉर्म में खो गया था. What was the scene by pilot? पायलट ने क्या देखा? बस देखा, एरोप्लेन देखा, गॉड देखा, फ्रेंड देखा. उसने, पायलट ने एरोप्लेन देखा, अनदर एरोप्लेन. व्हाट डिड अनदर पर्सन से? दूसरे पर्सन ने उसे क्या कहा? उसने क्या करा? दूसरे पर्सन ने ही लिफ्टेड वन हैंड एंड फॉलो मी, ही वाज सेइंग, ऐसा कहा. उसको ऐसा लगा कि वो हाथ हिलाकर कह रहा है कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो. दिस इज योर आंसर. कहाँ पर है आंसर? ऊपर से पैराग्राफ में, चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड अनदर पर्सन से हो गया. व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट? पायलट का जो एरोप्लेन था उसका नाम था डाकोटा. डाकोटा नाम था उसका. What is the similar word of the following passage? Sufficient. तो sufficient का दूसरा वर्ड, sufficient मतलब होता है पर्याप्त. तो पर्याप्त का दूसरा वर्ड है enough. This is enough. ये रहा यहाँ पे वर्ड enough. तो this is your answer. Now come to the question number 12. तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 में कोई 3 करने हैं. 3 प्रश्न करने हैं. तो पहला है व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी? व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे?
या तो ये किया होगा, व्हाई डिड द मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, स्वतंत्रता के लिए भूख इस वजह से मंडेला का जीवन कैसे बदल गया। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, छोटा सीगल उड़ने से कैसे डर रहा था। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है। तो इनमें से आपको कोई 3 ही करने, एनी 3, कितने करने हैं, एनी 3। नाउ नेक्स्ट इज आंसर क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्द करने थे। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब डाकोटा में पायलट जब आसमान में बादलों के बीच, तूफान के बीच में हवा जब उड़ा रहा था, तब उसके स्टॉर्म मीन्स तूफान, तो वहां पे उसका क्या अनुभव रहा, ये ब्लैक एरोप्लेन, वहां उस पार्ट में से आपको ये बताना है 80 शब्दों में। या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ डज एनी फील व्हेन हर फादर एंड मिस्टर किसिंग, एनी के बारे में बताइए जो कि बहुत टॉकेटिव लड़की है, और उसके फादर के बारे में, मिस्टर किसिंग उसके जो टीचर है उसके बारे में बताइए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना था, या तो आपने ये किया होगा या आपने ये किया होगा। नाउ नेक्स्ट इज 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में कोई एक करना है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, या तो प्रपोजल वाले पास से लोमो का कैरेक्टर स्केच लिखो, या व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द प्ले, या ये बताओ कि प्रपोजल में एंड कैसा रहा, एंड क्या था उनका, किस तरीके से नाटक का एंड हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में दोनों में से एक करना था। नाउ नेक्स्ट इज पोयम, पोयम पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में, I heard an old man, religious man, but yesterday declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you yourself alone and not for yellow hair. This is your paragraph, है ना, स्टेंजा। Now you have to write answer, इसमें आंसर लिखने हैं आपको। तो your answer is, first question is, Who found a text in the extract, किसको मिला ये extract, किसको मिला। तो your answer is, who found a text in the extract, किसको मिला, old religious man, an old religious man, कोई ये उसने extract दिया। Now next question is, who can love for yourself, कौन है, पहले का आंसर रहा ओल्ड रिलीजियस मैन, दिस वन। नाउ नेक्स्ट, हु कैन लव, ओनली गॉड, केवल गॉड, केवल गॉड ये जो खुद को खुद के गुणों के लिए प्यार करेगा, गॉड। नाउ नेक्स्ट इज, इन दोनों में से एक ही करना है, या तो आपको ये करना है या आपको ये करना है। नाउ नेक्स्ट इज, डोंट ईट चॉकलेट अमिंडा, remember your acne Aminda, will you please look at me, I will speaking to you Aminda. These are the stanzas line. Now first is, why is Aminda refused to eat chocolate, Aminda ने चॉकलेट खाने से मना क्यों कर दिया। Aminda refused to eat chocolate because of acne, क्योंकि उसको acne थे, मुहासे की शिकायत थी। What now next is question is, what is told to look at in the extract, क्या कहा है उससे, क्या देखने को कहा है। हर पेरेंट्स, आई एम स्पीकिंग टू अमेंडा, हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, क्या बोल रहे हैं उससे, डोंट ईट द चॉकलेट, ये बोल रहे हैं। व्हाट इज टोल्ड टू स्पीक इन लुदक्स, हर पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं, हर पेरेंट्स इज टोल्ड टू हर दैट डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कोई भी दो आपको इसमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई भी 3 करने हैं, 2 या 3, एनी 2, कोई भी 2 करने हैं। व्हाट डज द पोएट से, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लूज ऑफ द बॉल, गेंद गिर जाने की वजह से लड़का क्या सीखा।
हाउ डू यू आइडेंटिफाई नेशन लॉ, नेशन लॉ इनका आप कैसे पहचानोगे? हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज, कवि का मूड कैसे चेंज हुआ? इनमें से कोई भी आपको दो करने हैं, एनी टू, कोई भी दो आप करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 is your last page number 11. This is your page number 11 and last page of the question paper. Question number 17 is answer any one of the following two. कोई एक करना है दो क्वेश्चन में से. Now next question is 17 में How did Bholi teacher play an important role in changing the course of her life? This is कृष्ण भोली का जीवन परिवर्तित करने में उसकी अध्यापिका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान था, इसका आपको लिखना है. What was the course of change in the Loisel life? Loisel life में क्या परिवर्तन आ गया था? हार को घूमने से, मटिंडा के नेकलेस, और वो हार एक फॉल्स नेकलेस था, नकली हार था. तो उस नकली हार को असली हार समझ के उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी थी. इसका आपको कितने शब्दों में लिखना है? 80 वर्ड्स में लिखना है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. डू एनी वन. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. आंसर एनी टू. 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं. व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? वैज्ञानिक बनने के लिए, ये ग्रिफिन वाले पार्ट से हैं. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? क्या ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक? बताना है. ये जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग अ साइंटिस्ट? द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये जो बच्चा है वैज्ञानिक बनता है, उसकी माँ उसको पूरा सपोर्ट करती है. तो एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला वाला पार्ट ये वाला ये बता रहा है, ये वाला ये बता रहा है. दूसरा वाला है ग्रिफिन वैज्ञानिक जो कि अदृश्य हो जाता है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से. इसका आपको बताना है, या तो ये करना है या ये करना, तीनों में से कोई 2 करने हैं. व्हाई डज हॉरेस डेनबी स्टिल एवरी ईयर? किताबें पढ़ने का उसको शौक था, हर साल वो चोरी करता था. तो इसका आपको बताना है. आंसर कितने शब्दों में? ओनली 20 शब्दों में बताना है. और 2 नंबर का है, मीन्स 4 नंबर का है. क्वेश्चन नंबर 19. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर सीक्रेट एजेंट? सीक्रेट एजेंट कौन था? ऑजिबल था कि मैक्स था कि दोनों थे? तो यहाँ पे ऑजिबल. हाउ ओल्ड वॉज अनिल? 25 ईयर्स. अनिल 25 ईयर्स का था. व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसेस पंफ्रे हैड? मिसेस पंफ्रे जो कि एक अमीर महिला है और ट्रिप ऑफ सर्जरी पार्ट से, उसके कुत्ते का क्या नाम था? उसके कुत्ते का नाम था ट्रिकी. तो ये आपका पेपर आपने सॉल्व किया. आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा. घबराने की ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनर क्रूल नहीं होते हैं, वो दिल खोल के ही नंबर देते हैं. अगर आपने लिखा है तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, निश्चित रूप से अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आप लिख कर आए हो. तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे. 80 में से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे और आप अच्छी प्रतिशत से पास होंगे. अब आप सभी पेपरों को बहुत अच्छे से अपनी पूरी शिद्दत से कीजिए. सभी पेपरों के लिए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच.